Hello everybody and welcome back to another video. So in this video we will solve problem G from Codeforce round 787 and that was sorting pancakes. So let's solve that. तो प्रॉब्लम में क्या दिया अपने को? प्रॉब्लम we have been given an array. Array A that is of size n. So something like this: A1, A2, A3, so on till an. Also अपने को ऑपरेशन दिया, we haven't defined an operation. In one operation we can choose any element ai, right? उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से वन हम रिमूव कर देंगे एंड जो उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं इधर वन लेफ्ट वाला राइट वाला we can add one to any one of them. So we can either add one to ai plus 1 or we can either add one to ai minus 1, right? So for example अगर मैंने a2 में से 1 माइनस किया, either I can add 1 to a1 or either I can add 1 to a3. So आपने ये ऑपरेशन दिया, we want to apply this operation on this array and we want to sort it in non-decreasing order. So we want to sort array A like this: a1 greater than equal to a3 greater than equal to a3, so on greater than equal to a, right? इस array पे operations लगाओ and make it non-decreasing. And we want to find the minimum number of operations that we need. So we want to minimize the number of operations. First of all, let's solve this. Let's redefine our operation, right? So अगर ये मेरा कोई array है, let's say this is my array, some array, and let's say मेरा element क्या है, ai plus 1. So if I apply an operation on this, it will become I will remove my minus 1 from this and I will add 1 to my ai. इससे क्या हो, जो मेरा ai का prefix है उसमें 1 ऐड हो गया, राइट? सिमिलरली इफ आई अप्लाई ऑपरेशन ऑन ai, देन जो मेरा ai है इसमें से -1 हो जाएगा और मेरे a प्लस 1 में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा. तो जो मेरा प्रीफिक्स है i का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो आप देख रहे हो जब मैं ऑपरेशन लगा दूँ, जो मेरा i का प्रीफिक्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है. सो आई कैन रीडिफाइन माई ऑपरेशन इज basically adding or removing 1 from any prefix, right? So basically जो मेरा ऑपरेशन है, जो मेरा प्रीफिक्स है उसको ऑल्टर कर रहा है, राइट? सो नाउ डैट मैंने अपना ऑपरेशन रीडिफाइन कर दिया, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो हाउ विल वी सॉल्व इट? सो टू सॉल्व इट लेट्स डिफाइन अ dp, right? Let's define a dp, a 3D dp, that is dp of I, j and k. And ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? dp of I, j, k represent minimum number of operations, required to make array A non-decreasing right, up to index I, right, up to index I, such that a of I is equal to जो मेरा लास्ट एलिमेंट है that is equal to j, and my sum so far, that is summation from I equal to 1 to current let's call this p, right? p go from 1 to I, ap is equal to k. तो मेरा जो अब तक का सम है that is equal to k, right? So ये क्या बन गई, मेरी dp बन गई. So let's try to use this dp and try to solve our problem. So let's write our for loops. तो मेरा पहला for loop for index, right, for index. So for I goes from 1 to n. Next is for my last value, जो मेरी last value क्या है एलिमेंट की, right, that is value of ai. It goes from 4
I goes from 1 to m. Similarly, my sum so far, that is my sum for, and that is j here. K goes from j to m. Obviously जो मेरा सम है, राइट, जो मेरा सम है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई, क्योंकि अगर ये मेरी वैल्यू ए आई है, सो ऑब्वियसली जो मेरा सम के होगा, के विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई. सो यहाँ पे मैं इसलिए के कांस्टेंट लगा, इसलिए आई एम स्टार्टिंग के फ्रॉम जे, राइट. तो इसलिए जो मेरा सम है मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, जे से, ना कि 1 से या 0 से. ऑब्वियसली यहाँ पे जे विल स्टार्ट फ्रॉम 0 इंस्टेड, लेट्स राइट इट 0, 1 से नहीं. तो ये मेरी क्या स्टेट बन गई. सो नाउ आई एम समवेयर लाइक हियर. सो ये क्या है मेरी ए आई, इसकी करंट वैल्यू क्या है जे, इस पूरे का सम क्या है के. एंड नाउ आई वांट टू फाइंड आंसर फॉर दिस. नाउ आई वांट टू फाइंड आंसर फॉर ये वाली स्टेट. नाउ आई वांट टू फाइंड आंसर फॉर dp ऑफ आई जे एंड के. सो लेट्स, जो इससे पहले एलिमेंट आ रहा है, लेट्स उस पर थोड़ा मतलब वो करते हैं, फोकस करते हैं, राइट. सो ए आई माइनस 1. सो अगर यहाँ तक का सम के है तो यहाँ तक का सम कितना होगा, के माइनस जे, क्योंकि मेरी करंट वैल्यू क्या है, जे है. सो सम, यहाँ तक का सम क्या होगा, के माइनस जे. ऑल्सो द एरे इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. एरे हैज़ बीन सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो जो मेरा ए आई माइनस 1 है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, जे, जे प्लस 1, जे प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू m. So I can basically iterate over all values of ai minus 1. I can basically iterate over all values of ai minus 1 and इसके लिए corresponding I can find my corresponding state. So मेरे को मालूम है it takes me one operation to either add or remove from my prefix, right? So अगर मेरा current जो मेरा sum है prefix का, वो क्या है k, और जो मेरी array a थी उसमें भी इसकी prefix की वैल्यू क्या होगी, actual prefix value क्या होगी, prefix of I. So the number of operations it will take me to make this prefix sum equal to k, it will be absolute of prefix of I minus k. ये operations क्या हैं, operations required to make prefix sum up to index I equal to k, right? क्योंकि मैंने बताया था जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, वन ऑपरेशन मीन्स रिमूविंग, एडिंग और रिमूविंग वन फ्रॉम माई प्रीफिक्स. तो जो मेरी ओरिजिनल एरे थी, जो मेरी ओरिजिनल एरे ए थी, राइट, लेट्स से ये ए आई है, मेरे ओरिजिनल एरे ए में इसकी वैल्यू क्या थी, प्रीफिक्स की, इट वाज प्रीफिक्स ऑफ आई. बट करेंटली इसकी वैल्यू क्या है, करेंटली इसकी वैल्यू क्या है, के. तो मैंने इस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करे होंगे जिससे इसकी वैल्यू क्या बन गई, प्रीफिक्स ऑफ आई से के बन गई. एंड एक ऑपरेशन में जो मेरी प्रीफिक्स की वैल्यू एक कम या इंक्रीज होती है, सो इट मस्ट हैव टुक मी एब्सोल्यूट ऑफ प्रीफिक्स आई माइनस के ऑपरेशंस टू कन्वर्ट दिस प्रीफिक्स सम ऑफ प्रीफिक्स सम फ्रॉम प्रेफ ऑफ आई टू के. सो ये एक्स्ट्रा ऑपरेशन यहाँ पे ऐड हो गया, और ये ऑपरेशन के बाद एंड देन एक्स्ट्रा ऑपरेशंस जो ये वाली स्टेट है, देन बाकी जो इसकी जो छोटा वाला सब प्रॉब्लम है उसके लिए जो स्टेप्स लगे वो अलग से, राइट. सो लेट मी राइट दिस लूप नाउ. सो फॉर, लेट मी कॉपी दैट इंस्टेड, कॉपी दिस लूप.
सो मेरे एक्स्ट्रा ऑपरेशंस क्या हो गए? एक्स्ट्रा ऑपरेशन इज ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रीफिक्स सम इक्वल टू के. सो दोज ऑपरेशंस आर प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस के. इतने ऑपरेशन लगे मेरे को जो प्रीफिक्स ऑफ आई सम है उसको के बनाने में, राइट. तो ये ऑपरेशन तो हो गए अलग. नाउ आई कैन इटरेट ओवर माई ए आई माइनस वन. मेरी ए आई माइनस वन की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं? माई ए आई माइनस वन गोज फ्रॉम j to m, and now my dp of, now I can find my dp. My dp of I j k is equal to minimum of dp of I j k प्लस मेरे एक्स्ट्रा ऑपरेशंस लगे मेरे को कन्वर्ट करने के लिए वो, प्लस जो इससे पहले जो 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 इसकी सब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को कितने मूव्स लगे वो. That will be dp of I and dp of I minus 1. इससे पहले क्या वैल्यू थी? a minus 1 की वो वैल्यू. Let's call that value x. Let's call this value x. So x. और यहाँ पे सम क्या था? अगर मेरा यहाँ तक का सम k था तो इससे a minus 1 तक का सम क्या था? k minus j. So I can write k minus j. तो ये क्या बन गया मेरा सॉल्यूशन. सो अभी तुम देख रहे होगे कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई इसकी? n इटरेशन यहाँ पे, m इटरेशंस यहाँ पे, m इटरेशंस यहाँ पे एंड m इटरेशंस ये वाले फोर लूप में. फॉर सम रीजन माय पेन इज नॉट वर्किंग. तो कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? इसकी कम्प्लेक्सिटी हो गई O of n इंटू m इंटू m इंटू m. कम्प्लेक्सिटी बिकम्स O of n इंटू m दी पावर 4, सॉरी m दी पावर 3. एंड nm की वैल्यू क्या है? nm की वैल्यू इज अराउंड 250. सो हो सकता है ये TLE करे. दिस में वेरी पॉसिबली TLE. यहाँ पे वैल्यू ऑफ a माइनस 1 तो हो सकता है ये TLE करें. सो हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज दिस फर्दर? लेट मी कॉपी इट अगेन. So to optimize this further, we will use a technique that is called prefix or suffix optimization of DP. We will use prefix or suffix optimization of DP. अभी तुम यहाँ पे देख रहे हो कि आई एम इटरेटिंग ओवर एवरी वैल्यू ऑफ j. मैं j की जो मेरी a माइनस 1 है मैं उसकी हर एक वैल्यू पे इटरेट कर रहा हूँ from j to m. So if I can somehow remove these iterations, I can save time here. So I will try to remove these iterations now. How can I remove these iterations? Let's see that. So to do that, let's redefine our dp. जो मैंने dp यहाँ पे define करी थी, let's redefine that. So let's copy this also. Let's redefine our dp. यहाँ मैंने dp में क्या लिखा था? such that minimum number of operations required such that array is non-decreasing up to index I and ai is equal to j. If I can redefine here, ai is less than ai is greater than equal to j. If I redefine my dp like this, then जो मेरी यहाँ पे m iterations हो रही थी, I can save these iterations, right? I can save these iterations. Because then I can directly write dp of I jk is equal to minimum of dp I jk extra operations plus dp of I minus 1 j and k minus j. तो जो मेरी यहाँ पे एक्साइटेशंस हो रही थी, यहाँ पे जो मेरी m इटरेशंस हो रही थी अब वो नहीं हो रही हैं. नाउ आई एम सॉल्विंग इट इन O of 1. क्यों? क्योंकि जो मेरा आप dp of
क्योंकि अब जो मेरा डी पी ऑफ जे है, डी पी ऑफ आई जे के है, तो जो मेरा ये डी पी ऑफ आई जे है, इट इज़ ऑलरेडी होल्डिंग वैल्यूज़ फॉर डी पी ऑफ जे, जे प्लस वन, जे प्लस टू, सो ऑन टिल एम। तो अभी अभी ऑलरेडी इसका मिनिमम स्टोर कर रहा है, राइट। सो आई डोंट नीड टू इटरेट एम टाइम्स। अभी मेरा डी पी इतनी ऑप्टिमाइज्ड हो गई है दैट आई डोंट नीड टू इटरेट एम टाइम्स। तो मैंने ऐसे ही आई फाउंड ऑल माई वैल्यूज़ फॉर डी पी आई जे के, तो मैंने इंडेक्स आई के लिए सारी वैल्यूज़ निकाल ली। देन आई ऑप्टिमाइज डी पी फॉर डी पी ऑफ आई। मेरे कहने का मतलब क्या है? सो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। अगर आप कोड देखोगे यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। सो मतलब बेसिकली सॉल्यूशन यही है। लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस। सो इफ यू वांट टू सी माय कोड फॉर दिस, ये मेरा प्रीफिक्स सम हो गया। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ? टू काउंट मूव्स, राइट। क्योंकि जो मेरे एक्स्ट्रा ऑपरेशंस हैं, मेरे को एक्स्ट्रा ऑपरेशंस भी तो निकालने। आई वांट टू फाइंड माय नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस, राइट। सो फॉर दैट आई एम स्टोरिंग माय प्रीफिक्स सम, राइट। So this is my dp of I j k up to ith index, last value is greater than equal to j and sum is k। तो मैंने अपनी dp कर ली, पहले कर ली इनिशियलाइज। देन मैंने जो मेरी dp की ट्रांजिशन थी, जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, राइट, जो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है, दिस इज माई ट्रांजिशन। अब जो मेरी अब मैंने जो मैंने डी पी एफ जो मैंने करंट इंडेक्स के लिए डी पी निकाली है ना, वो सफिक्स ऑप्टिमाइज नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली जे के लिए निकाल रहा हूँ। आई एम स्पेसिफिकली फाइंडिंग हेयर फॉर जे। तो जो ये डी पी है ये ऑप्टिमाइज नहीं होगी करंट इंडेक्स के लिए। सो जब मैंने करंट इंडेक्स के लिए सारी स्टेट्स निकाल ली, देन आई हैव टू ऑप्टिमाइज इट फॉर माई करंट इंडेक्स। मेरे कहने का मतलब क्या है? जो मेरी डी पी ऑफ आई माइनस वन और जो भी इसकी स्टेट्स होंगी वो सब क्या होंगी? सफिक्स ऑप्टिमाइज्ड होंगी। पर जब मैं डी पी ऑफ आई निकाल रहा हूँ, मैं डी पी ऑफ आई जे के निकाल रहा हूँ, तो मैं स्पेसिफिक वैल्यू के लिए निकाल रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग इट फॉर ए आई इक्वल टू जे। आई एम नॉट फाइंडिंग इट फॉर ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। जो मेरी डी पी की डेफिनेशन क्या है? माई डेफिनेशन ऑफ डी पी इज ए आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे। बट जब मैं करंट इंडेक्स के लिए निकाल रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग इट फॉर ए आई इक्वल टू जे। आई एम नॉट फाइंडिंग इट फॉर ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, राइट। सो आई हैव टू ऑप्टिमाइज दिस। तो जब मैंने डी पी ऑफ आई की सारी स्टेट्स निकाल ली, व्हेन आई हैव फाउंड ऑल माई स्टेट्स फॉर डी पी ऑफ आई, जब मैंने सारी स्टेट्स डी पी ऑफ आई जे के लिए निकाल ली, देन आई विल ऑप्टिमाइज इट, राइट। सो दैट जो डी पी एफ आई प्लस वन है वो इसको यूज़ कर पाए, सो दैट डी पी एफ आई प्लस वन कैन यूज इट फर्दर, देन सफिक्स ऑप्टिमाइज इट। सफिक्स ऑप्टिमाइज कैसे होगा? आई कैन जस्ट नॉर्मली राइट डी पी ऑफ आई जे के इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी पी ऑफ आई जे के कॉमा डी पी ऑफ आई जे प्लस वन के, राइट। तो जब मैं इसको ऐसे ऑप्टिमाइज कर दूंगा, नाउ माई डी पी ऑफ आई जे के विल रिप्रेजेंट एवरी ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, राइट। नाउ जो ये मेरी डी पी की डेफिनेशन इसको फॉलो कर रहा है। सो लेट्स समराइज, मैंने क्या बोला अभी। सो जो मेरी प्रीवियस वैल्यू होगी डी पी एफ आई माइनस वन, वो क्या होगी? ऑप्टिमाइज्ड। बट जब मैं करंट डी पी निकाल रहा हूँ मेरी ट्रांजिशन से, आई एम फाइंडिंग इट फॉर स्पेसिफिक ए आई इक्वल टू जे, तो वो ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे की जो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी। सो व्हेन आई एम डन विद ऑल माई ट्रांजिशंस फॉर माई करंट इंडेक्स, आई हैव टू ऑप्टिमाइज इट, आई हैव टू सफिक्स ऑप्टिमाइज इट, राइट। सो फॉर दैट आई विल ऑप्टिमाइज इट यूजिंग दिस नॉर्मल ट्रांजिशन, कि जो मेरा डी पी एफ आई जे के है वो क्या होगा? जो मेरा करंट स्टेट है और जो इससे बड़ी स्टेट है जे प्लस वन वाली, ए आई इक्वल टू जे प्लस वन, उसके लिए मैंने इसका मिनिमम निकाल लिया। सो आई एम देन ऑप्टिमाइजिंग इट, आई एम सफिक्स ऑप्टिमाइजिंग इट, राइट। सो इसके बाद जो मेरा डी पी एफ आई जे के है वो इट विल रिप्रेजेंट ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। सो इट विल नाउ ओबे माई डी पी डेफिनेशन। सो आफ्टर दिस आई कैन यूज दिस टू कैलकुलेट
use this to calculate dp of I plus 1, right, और जो भी इसकी states हैं. So ये हो गया, and my answer will be dp of n 0 and m. So my answer will be, मेरे सारे एलिमेंट्स हो गए ट्रेवर्स. सो दिस इज a1 a2 so on till an. My an can be greater than equal to 0, right, और जो इसका प्रीफिक्स सम है वो क्या होगा, इट विल बी m, right. So my answer will be dp of n, a can be greater than equal to 0, so 0 here, and my sum will be equal to m, so my sum here and my index here. So this will be my final answer. So I hope you guys understood the solution. If you guys have a doubt, do let me know in the comments and I will try to help you out. Yeah, so that was it. So if you guys don't know, Newton School is currently offering a 6-month full stack development course, right? It is totally based on pay after placement model. So आपको कुछ pay नहीं करना है upfront, right? There is zero hidden fees, there is zero upfront fee. कुछ pay नहीं करना है आपको. And they will get you placed into top MNCs like Google, Flipkart, Zomato, etc. with a minimum package of rupees 5 lakhs. So they are guaranteeing that they will get you a minimum package of rupees 5 lakh, but that is the minimum, of course, right? The average package is around rupees 7 lakhs and the highest is rupees 26 lakhs, right? And the placement rate is over 90%. Also जो इनके mentors हैं, all their mentors are from FANG, right? From Goldman Sachs, from Amazon, from Flipkart, Google, etc. So you can be assured कि जो भी mentorship है, you are getting top mentorship. The quality of the course is top notch, right? Also अगर आपको थोड़ा मतलब आप थोड़ी hesitant हो कि मेरे को coding नहीं आती है, how will I cope up? You don't need to worry. You just need to sign up for an aptitude test. अगर आप उसमें अच्छा करते हो, you will be signed up for the course, right? And ये 6 month लंबा course है, right? So you don't need to worry. They will teach you from scratch. So you can still cope up. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, if you don't know coding, they will teach you from scratch, right? And the course is very beginner friendly. So if you guys are looking for a job, this is definitely a head start that you should aim for, and I will highly recommend this if you are looking for a job in the tech field, right, or a similar area, right? So do sign up for this. The link will be down below, and let me know if you guys have doubt about the video as well, and do let me know the questions or the problems that you want to see solutions for, or some general improvement tips, and I will be happy to cover them as well.